Let us look at the challenges that guidance and counseling services may encounter from a political perspective, from a political theory. Now, this is something which needs closer attention. This basically means that sometimes there is a discrepancy between what you value and then the resources that are available. मिसाल के तौर पर आप बहसियत उस्ताद के ये समझते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का स्कूल में होना बेहद ज़रूरी है. ये अवामिल स्कूल में मौजूद होने चाहिए, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए हम स्टूडेंट की शख्सियत को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं. मगर इसके बरक्स आपके स्कूल में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं. आपको वो रिसोर्सेज फराम नहीं की गई जिनके ज़रिए आप सक्सेसफुल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वहाँ पर फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. Things become very political because a conflict comes between what you value, what you consider important, and then what is given to you. आपको अगर ये कहा जाता है कि you need to counsel the student, लेकिन आपको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर नहीं की जाती जिनके ज़रिए आप इन सर्विसेज का इनेकाद कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक conflicting situation है. On one hand, you are asked to do something, and on the other hand, you are unable to do it because of lack of resources. So what to do in that case? Who will face the music and who will take the responsibility? Things can go political और वहाँ पर फिर एक इंतहाई बाज़ौक़ात एक बुरी सूरत सामने आ जाती है जिसमें people are putting blames on others and people are not prepared to take on responsibilities क्योंकि वहाँ पर proper procedures in place नहीं होते हैं. Nobody wants to take responsibility. People keep passing the blame from one to the other और वहाँ पर स्टूडेंट का मसला बरकरार रहता है. तो जहाँ पर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं वहाँ चीज़ों की जो पोलिटिकलाइजेशन है वो नहीं होनी चाहिए. Things have to be in black and white. If guidance and counseling service has to be given in school, then it should be ensured that it is given in school. फिर जब आप उस सहूलत को वहाँ पर फराहम नहीं करते तो फिर मसला ना सिर्फ आपके लिए होता है बल्कि वो तमाम लोग जो उस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं उनके लिए भी मसला पेश आता है. तो वहाँ पर चीज़ों को प्रोफेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपने बारे में ठोस इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो आपकी. और इसके साथ साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन को कभी अंडर वैल्यू ना करें. Things become very political when you continue to devalue your own profession. And that does happen especially when we talk about the teaching profession. We keep undervaluing our profession by looking at those things which are not in our control. सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुद कितने ठोस उस्ताद हैं. What kind of content knowledge do we have? What kind of pedagogical knowledge do we have? What kind of managerial support do we give? And the facilities that are given to us. और उसके साथ साथ what are the other skills that we possess which are important in order to carry on the teaching and learning process smoothly. ये तमाम चीज़ों का पहले जायज़ा लेना ज़रूरी है. हमें पहले अपना आप देखना है कि बहसियत उस्ताद के how is it that we are fulfilling our duties और उसके बाद हमने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना है. It is very easy to put the blame on others, but it is very difficult to accept the blame ourselves. So पहली बात तो ये है कि अपने प्रोफेशन को वैल्यू करें और उस प्रोफेशन की जो डिमांड्स हैं उनको मीट करने की कोशिश करें. जिसका मतलब ये है कि अगर आप उस्ताद हैं या आप काउंसलर हैं तो जो भी सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं आपके प्रोफेशन में उनको आपने मीट करना है और उसके बाद अगर रिसोर्सेज को फराहम नहीं किया जा रहा तो उन पर बात करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ. You have to give value to your own profession and then look at the issues that are striking you, which should be external in nature. So first of all, we have to look at our internal worries. We have to address our internal problems and then look at external issues. इसके साथ साथ ये चीज़ देखनी भी ज़रूरी है कि आपकी बहसियत काउंसलर के या उस्ताद के जिम्मेदारियां क्या हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉन स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है तो वहाँ पर तो चैलेंज होगा. मिसाल के तौर पर अगर आपकी आउट ऑफ स्कूल कोई ड्यूटी लग जाती है या आपको किसी ऐसी मुहिम पे भेजा जाता है जिसका ताल्लुक जो है वो तदरीस से नहीं होता, सो वो वहाँ पर दिस इज समथिंग विच वी कैन कॉल पॉलिटिकल.
जिसका मतलब ये है कि आपको आपके स्कूल की सिचुएशन में से निकालकर किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व किया जा रहा है जिसका ताल्लुक तदरीसी अमल से नहीं है और उसमें आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। उसी वक्त का बेहतर इस्तेमाल आप स्कूल के अंदर मौजूद रह के कर सकते हैं। तो वहां पर फिर चीजें पोलिटिसाइज होना शुरू हो जाती हैं और सही बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए हमें सबसे पहले तो इस चीज का तयन करना है कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। What is the duty of a school head? What is the duty of the other administrative staff, including the school administrators, including the coordinators? And what is the duty of a teacher or a counselor? When we determine these duties, then it becomes very easy for us to conduct our daily affairs.